ಸಂದೇಶ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಶತಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಜನಸಮೂಹ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಜಿ ಪರವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈಡೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ನಾಯಕರಾದಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ SR ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಗೌಡ್ರೆ ಸಲೀಂ ರವರೇ ಐವಾನ್ ರವರೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡಗಳೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ನಾನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಆ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಾ ಬರಕ್ಕಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ 20-25 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಜನಸಮೂಹ ನನ್ನ 30 ವರ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಭೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸಾಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ನನ್ನ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದೊಂದು ಸತ್ಯದ ನಾಡು ಈ ಸತ್ಯದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನ ಗೌರವನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಈ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಡೀ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ನಾನು ಆಗಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತಿಹಾಸ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಸವಣ್ಣವರು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ದಿನ ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ
गांधी की, महात्मा गांधी की, राजीव गांधी की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, सिद्धरामಯ್ಯನವರಿಗೆ बंधुगळे, वेणुगोपाल जी, सिद्धरामಯ್ಯ जी, डॉक्टर परमेश्वर जी, खारगे जी, डीके शिवकुमार जी, KH मुनियप्पा जी, वीरप्पा मोइली जी, BK हरिप्रसाद जी, रामनाथ राय जी, UT खादर जी, प्रमोद माधवराज जी, विनय कुमार सोराके जी, अभय चंद्र जैन जी, JR लोबो जी, बसंत बंगारे जी, शकुंतला शेट्टी जी, हरीश कुमार जी, PC विश्वनाथ जी, कांग्रेस के हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत। रात का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में एक महायुद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध। एक तरफ कौरव थे, उनके पास सेना संगठन, दूसरी तरफ पांडव खड़े थे, सिर्फ 5 थे। कौरवों के पास धन, लाखों लोग, पांडवों के पास छोटी सी सेना। कौरव सत्ता के लिए लड़ रहे थे, पांडव सत्य के लिए, सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। सवाल यह था, उस समय सवाल था, क्या हिंदुस्तान सच्चाई के रास्ते पे चलेगा या झूठ के रास्ते पे चलेगा? और एक प्रकार से वही सवाल आज पूछा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी जो सत्ता के लिए कुछ भी कर देती है, गोवा में MLA को खरीदेगी, मेघालय में, मणिपुर में, अरुणाचल में पैसा देकर सरकार खरीदेगी। और ये सब आपने देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। हिंसा फैलाओ, पैसा देकर सरकार बनाओ, देश को बांटो, सब कुछ कर डालेंगे सत्ता के लिए। मोदी जी आएंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोलेंगे। हमने और उनमें फर्क है, कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में फर्क है। और देश इस बात को समझती है, देश जानती है कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के पीछे दौड़ती है,
तो देश इस बात को मान सकती है, आप देखो उदाहरण देता हूं, इस बात को मान सकती है कि बीजेपी के प्रेसिडेंट उससे कम नहीं, प्रेसिडेंट पर मर्डर का आरोप है। देश जानता है ये लोग तो कुछ भी कर डालेंगे, मार डालेंगे, जला डालेंगे, पैसा दे देंगे सत्ता के लिए, देश जानता है। मगर वैसा काम देश कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं करने देगा, क्योंकि देश जानता है कि ये सच्चाई का संगठन है। इसमें सच्चे लोग बैठे हैं जो स्टेज से ये कहते हैं, ये करके दिखाते हैं। ये हम में और उनमें फर्क है। और पूरा देश इस बात को जानता है, समझता है, अच्छी तरह जानता है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो और देखना चमत्कार, 15 लाख रुपए सीधे हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में खटाखट। नुडिडंटे नडे, बसवना, नारायण गुरु, रानी अबक्का, कोटी और चन्नैया, लाइन लगी हुई है कर्नाटक में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये आप ही के लोग थे, सब के सब जो मैंने नाम लिए हैं, ये सब आपके थे। और इन्होंने सिर्फ कर्नाटक को रास्ता नहीं दिखाया, सिर्फ हिंदुस्तान को रास्ता नहीं दिखाया, पूरी दुनिया को इन्होंने रास्ता दिखाया। और अगर कर्नाटक का युवा सिलिकॉन वैली में जाके आज कंपनी बना सकता है, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कह सकता है कि हिंदुस्तान अमेरिका को चुनौती दे रहा है, छोटी बात नहीं है, सुपर पावर है वो। और उनके राष्ट्रपति ने कहा कि दो ही देश अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, एक है चीन और दूसरा है हिंदुस्तान। सोच किसकी है? किस सोच ने हिंदुस्तान को वहां तक पहुंचाया? नारायण गुरु, बसवना, रानी अबक्का, इन लोगों की सोच ने हमें यहां तक पहुंचाया। ये 10 दिन में नहीं होता काम। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका, अमेरिका में भाषण देते हैं, हिंदुस्तान में 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये किसका अपमान कर रहे हैं? ये आपके माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये आपके दादा दादी का अपमान कर रहे हैं, ये उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने आईआईटी खड़ी की, आईआईएम खड़ा किया, एचएएल बनाया। ये उनका अपमान कर रहे हैं। और वो कौन लोग थे? वो हिंदुस्तान के लोग थे। करोड़ों किसान सालों से लगे हुए हैं, 4 बजे सुबह उठते हैं, पूरा जीवन दे देते हैं। छोटे दुकानदार दिन भर लगे रहते हैं,
करोड़ों युवा सपना देखते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाके कहते हैं 70 साल इन लोगों ने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ। बसवण्णा नहीं थे, नारायण गुरु नहीं थे, रानी अब्बक्का नहीं थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं। दो करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी ने रोजगार देने का वायदा किया। पार्लियामेंट में हमने उनके मंत्री से पूछा, भैया आप बात बताइए, आपके प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, 4 साल हो गए, पिछले साल आपने कितने युवाओं को रोजगार दिलवाया? उनका मंत्री कहता है 8 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, और पिछले साल पूरे हिंदुस्तान में हमने 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया। कहां 2 करोड़, कहां 1 लाख? नुडिडंटे नडे मोदी जी। किसानों को सही एमएसपी दूंगा, अनाज के लिए, सब्जी के लिए नरेंद्र मोदी सही दाम देगा। एमएसपी काट दी, सही दाम छोड़ो। पांच बैंक इस एरिया में खोले गए सालों पहले। कांग्रेस पार्टी ने बैंक को हर गांव में पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया मैं बताता हूं। 8 नवंबर पूरे हिंदुस्तान को कहते हैं भाई और बहनों, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, मैं इसको रद्द करने जा रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं। हिला दिया हिंदुस्तान को। आप सब लाइन में जाके खड़े हुए, उन्हीं नेशनलाइज्ड बैंक्स के सामने, पीछे के दरवाजे से नरेंद्र मोदी के मित्र बड़े बड़े सूटकेस लिए काले धन को सफेद में बदल रहे हैं। आप लाइन में आगे खड़े हो, देख रहे हो क्या हो रहा है। एसी कमरे में सौदा हो रहा है, आपका पैसा बैंक में जाता है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का, लाखों करोड़ों लोगों के बिजनेस ठप हो जाते हैं। काले धन के खिलाफ लड़ाई। और फिर पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार आप पढ़ते हो नीरव मोदी और उनके रिश्तेदार मेहुल चोकसी, जिनको नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपका पैसा 22,000 करोड़ रुपए आपके उठा के ले जाता है, और हिंदुस्तान के चौकीदार एक शब्द तक नहीं कहते हैं। सब कंपनियां बंद हो जाती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कंपनियां बंद होती हैं। एक कंपनी उभर के निकलती है, अमित शाह, बीजेपी के प्रेसिडेंट
कि बेटे की कंपनी 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ रुपए में बदलने वाली कंपनी, और हमारा चौकीदार एक शब्द नहीं कहता है। कांग्रेस पार्टी ने एयरफोर्स के लिए राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया। 570 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। नरेंद्र मोदी जाते हैं पेरिस, डिफेंस मिनिस्टर गोवा में मच्छी की दुकान में मच्छी खरीद रहा है। मोदी जी जाते हैं पेरिस और राफेल कॉन्ट्रैक्ट को बदल देते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को जाना था, नरेंद्र मोदी जी ने एचएएल से छीनकर अपने एक उद्योगपति दोस्त को दिया। 70 साल से एचएएल हवाई जहाज बना रही है। उनके मित्र ने 70 साल में कभी हवाई जहाज नहीं बनाया। बेंगलोर के युवाओं से मोदी जी ने रोजगार छीना और अपने मित्र को दिया। हमने मोदी जी से सवाल पूछा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने कॉन्ट्रैक्ट बदला, हवाई जहाज का दाम क्या था? बाकी सब छोड़िए, हवाई जहाज का दाम बता दीजिए। इंडियन एयरफोर्स का हवाई जहाज है, जनता का पैसा है, आपने इस हवाई जहाज के लिए कितना पैसा दिया? कांग्रेस पार्टी ने 570 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज दिया। डिफेंस मिनिस्टर कहती है नहीं, हम बताएंगे, कुछ दिन दो हमें, हम बताते हैं। कांग्रेस पार्टी ने फिर पूछा, आपने कहा था कि आप बताएंगी, नहीं बताया। डिफेंस मिनिस्टर पोजीशन बदलती है, कहती है नहीं, फ्रांस के साथ हिंदुस्तान की सरकार का एक सीक्रेट पैक्ट है, हम हिंदुस्तान को राफेल हवाई जहाज का दाम नहीं बता सकते। अब देखिए दुनिया कैसे चलती है। फ्रांस का राष्ट्रपति आता है, फ्रांस के राष्ट्रपति से प्रेस वाले पूछते हैं, भैया बताइए क्या कोई सीक्रेट पैक्ट है? फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है नहीं, हिंदुस्तान की सरकार के साथ कोई सीक्रेट पैक्ट नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सरकार अपनी जनता को राफेल हवाई जहाज का दाम बताना चाहती है तो बता सकती है, सामने सबके। मतलब रक्षा मंत्री ने देश को खुलकर झूठ बोला। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, उनका झूठ पकड़ता है, और फिर राफेल हवाई जहाज को बनाने वाली कंपनी दाम पब्लिक को बता देती है। कांग्रेस पार्टी ने 570 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने 1670 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए। 3 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने उसी हवाई जहाज को खरीदने के लिए दिया। 40,000 करोड़ रुपए किसके जेब में गए? $40,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र के जेब में डाले। सच्चाई है। उसके बाद रक्षा मंत्री कहती है हमें किसी को दाम बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो नेगोशिएट किया था वो अलग है, हमने जो नेगोशिएट किया वो अलग है। इसको भ्रष्टाचार कहते हैं, इसको चोरी कहते हैं।
इसके लिए और कोई शब्द नहीं है। और हिंदुस्तान का चौकीदार बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। मैंने कहा, एक तरफ सत्ता का संगठन, दूसरी तरफ सच्चाई का संगठन। पूरा देश समझता है बीजेपी एक संगठन की आवाज है, कांग्रेस पार्टी एक देश की आवाज है। यह फर्क है। वो एक संगठन का काम करते हैं, हम एक देश का काम करते हैं। वो संगठन के लिए कुछ भी कर देंगे, हम देश के लिए कुछ भी कर देंगे। ये फर्क है हमने और उनमें। कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मोदी जी के ऑफिस में मैं गया, एक ही बार गया हूं। किसान की समस्या थी। मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर 10-15 लोगों के कर्जा माफ किया। ऑफिस में गया और मैंने उनसे कहा, मोदी जी आपने 15 लोगों का 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान में करोड़ों किसान हैं, आप उनका भी कर्जा माफ कर दीजिए। आपके नारे लगेंगे, किसान खुश होंगे, हिंदुस्तान बदलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे सवाल का जवाब तक नहीं दिया। फिर वही सवाल मैंने सिद्धरमैया जी से पूछा, देखो बैठे हुए हैं, इनसे मैंने पूछा, यही सवाल मैंने खारगे जी से पूछा। परमेश्वर जी से पूछा। मैंने कहा, क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के किसान का कर्जा माफ कर सकती है? 10 दिन के अंदर मुझे सिर्फ जवाब नहीं मिला, सिद्धरमैया जी ने 8,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। किसानों के लिए बीजेपी से 3 गुना ज्यादा पैसा हमने सिंचाई में डाला। 3 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के कर्नाटक के किसान को हमने दिया। 2 लाख तालाब बनाए किसानों के लिए। हमने आपसे लंबे वायदे नहीं किए थे, बड़े भाषण नहीं दिए, मगर जब हमें लगा कि कर्नाटक के किसान को मदद की जरूरत है, हमने मदद करके दे दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, स्टेट से बता रहा हूं, सुन लो। और सिर्फ कर्नाटक के किसान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में आएगी, अगर हिंदुस्तान के किसान को जरूरत है, जैसे हमने 70,000 करोड़ रुपया आपका कर्जा माफ करके दिया था, हम फिर से आपका कर्जा माफ करके दिखा देंगे। आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो। हमारा फर्ज बनता है आपकी इज्जत करना, हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। ये हम आपको कोई तोहफा नहीं दे रहे हैं, आपको फ्री गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, ये आपका हक है। आपने इस देश को बनाया है। हर घर में हर व्यक्ति को 7 केजी चावल मुफ्त में कांग्रेस पार्टी ने दिया। हमने आपसे ये नहीं कहा कि हमें वोट दो, हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ और फिर हम आपके लिए काम करेंगे। हमने सीधा आपके लिए काम किया। कर्जा माफी, 7 किलो चावल, इंदिरा कैंटीन, और अभी शुरुआत हुई है। गरीब से गरीब व्यक्ति
कर्नाटक के शहरों में पेट भरकर खाना खा सकता है, स्वादिष्ट खाना, साफ खाना, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हमने आपसे ये नहीं कहा था कि भैया देखो चुनाव जिताओ फिर हम आपको इंदिरा कैंटीन देंगे। हम आपके लिए काम करते हैं, हम आपके लिए यहां खड़े हैं। लड़कियों के लिए फ्री में केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा। अब आपके लोग गुजरात जाते होंगे, जो गुजरात गया उससे आप पूछो, बीजेपी की सरकार है वहां पर 90% कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उन्होंने प्राइवेटाइज कर दी, गुजरात के सबसे अमीर लोगों के हाथ में दे दी। 3-4 महीने मैंने गुजरात में कैंपेन किया। रोते हुए बच्चे ने मुझे कहा कि कॉलेज में जाने के लिए 15 लाख रुपए लगते हैं। 15 लाख रुपए नहीं है तो गुजरात का युवा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकता। और वही हाल अस्पतालों में। सरकार में आते हैं और सब कुछ 10-15 अमीर लोग के जेब में डाल देते हैं। अलग अलग नाम होते हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या। यहां पे कर्नाटक में कर्नाटक की जनता ने मन बना लिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। और जिस प्रकार से हमने पिछले 5 साल में किया उससे दुगना काम हम आपको करके दिखाएंगे। मोदी जी आते हैं, कभी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैंने आपको राफेल के बारे में बोला, जय शाह के बारे में बोला। गुजरात पेट्रोलियम सबसे बड़ा स्कैम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नीरव मोदी के बारे में बोला। और पहले मैंने आपसे बोला था कि बीजेपी सत्ता का संगठन है, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी आते हैं और भ्रष्टाचार की बात स्टेज से करते हैं, और उसी स्टेज पर 4 मंत्री बैठे होते हैं जिन्होंने जेल में टाइम काटा है, और उसी स्टेज पर उनके एक्स चीफ मिनिस्टर बैठे होते हैं जो जेल में समय काट के आए हैं। मोदी जी सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को कोई समझ नहीं। भरोसा क्या हिंदुस्तान के युवाओं ने मोदी जी पे? वोट दिया था, क्यों दिया? भाषणों के लिए नहीं दिया, रोजगार लाने के लिए वोट दिया, किसानों की मदद करने के लिए वोट दिया। और वो काम बिल्कुल अधूरे हैं। चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है। जहां देखो आप, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। डोकलाम में घुस गए, उनकी सेना बैठी हुई है अंदर, वहां पे आज बैठी हुई है, सड़क बन रही है। 56 इंच की छाती के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ढोकला में चाइना बैठा हुआ है।
रक्षा मंत्री राफेल के बारे में बात कर रही, खोखलापन, जो कहना है कह दो। 4 साल हो गए हैं, हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई। आपके पास मोदी जी 1 साल बचा है, हिंदुस्तान का टाइम जाया मत करिए। करोड़ों युवा हैं, उनको रोजगार देने का काम शुरू कीजिए। करोड़ों किसान हैं, उनको सही दाम देने का काम शुरू कीजिए। आपने मेक इन इंडिया की बात की, फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप, खोखला। स्वच्छ भारत की बात की, फ्लॉप। स्टार्टअप इंडिया की बात की, फ्लॉप। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फ्लॉप पिक्चर चल रही है। आप हमारे प्रधानमंत्री हो, करोड़ों लोगों का देश है। 4 साल आपने ज़ाया कर दिए, 1 साल बचा है, थोड़ा सा काम करके तो दिखा दो, थोड़ा सा, एक चीज करके दिखा दो। देश शब्दों से नहीं चलता है, झूठ से नहीं चलता है, ये सच्चाई का देश है। नारायण गुरु बसवना का देश, उनका प्रदेश। अगर ये चलेगा तो इस सच्चाई के पथ पर चलेगा, सच्चाई के रास्ते पे चलेगा। और अगर आपने इसको सच्चाई के रास्ते पे चलाया तो ये किसी भी देश का मुकाबला कर जाएगा। रात का समय है, आप दूर दूर से आए, प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो यहाँ वर्कर हैं, लाखों वर्कर हैं हमारे, मैं जानता हूं कि आप इस पार्टी को अपना खून पसीना देते हो, घंटों के लिए नहीं, महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए देते हो, और आप हमारे लिए लड़ते हो, हमारा झंडा उठाते हो। दिल से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वेणुगोपाल जी को, सिद्धरामैया जी को बताया है कि इस चुनाव में वर्कर की आवाज सुनकर टिकट दिया जाएगा। तो अब आपके सामने लड़ाई है, आप कांग्रेस पार्टी को हो, हिंसा से नहीं, गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं। नफरत और गुस्सा उनका है, प्यार से, भाईचारे के साथ चुनाव में आप बीजेपी को हरा के दिखाओ। और यह काम मैं जानता हूं, यह काम आप करके दिखाओगे। वो आपके बारे में आपको गाली देंगे, गंदे शब्द प्रयोग करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, मगर आप सिर्फ मीठी बात करोगे, प्यार से बोलोगे और मिलकर उनको हराओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।